Good evening. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. I am extremely happy to see the progress of our candidates by using the mock test suggested by me and adopting the methodology which I am telling in my videos. Our candidates are showing day-to-day improvement, and this improvement will take them to the path of success when examination will happen. So many of our subscribers have already taken the mock test. If you have not subscribed this mock test, subscribe it today. Take annual plan at 599 rupees. You get all the mock test of banking exams, insurance, SSC, railways, and the pricing is just 50 rupees a month, because 599 for a year means your effective cost is around 50 rupees a month. That is so low a price to go for a good quality mock test. So you should subscribe. And today we will attempt the 10th mock test from the link that is available in description and comment column. Attempt this mock test. After attempting this mock test, go to the solution, then see the analysis. So analysis will tell you what type of areas where you are lacking. Note down the topics which you missed out, which you could not solve. These are your weak areas. These are your focus areas. And if you focus on these topics, these areas, today and next 3 days, naturally improvement will come. So the key to success is identification of our weak areas, working on weak areas, converting the weak areas into strength, and gradually move towards success. And always reading from elementary textbooks is always advisable. And these textbooks are readily available on Google search. You have to simply type the name of topic plus NCERT book. You will land up on a page where some PDF is available. Download that PDF and start reading from this PDF. More and more elementary study you will do, more and more conceptual clarity you will achieve. I have seen people, they say, sir, my concepts are clear, but still I am not able to perform or crack the exam. This is wrong notion. If your concepts are clear, you are bound to succeed. If you are not able to clear the exam, it clearly indicates your concepts are not clear. And this is the time when you should put your energies to clear these concepts. This time, exams are already delayed. You are getting extra time to prepare. Utilize this time in clearing your doubts, having the conceptual clarity, so that you can move ahead with confidence in the examination. So this is up to you how you want to move further. Then general awareness paper is another area where you should focus. Spend at least 1 hour on current affairs. For reading current affairs, I have suggested very good PDF link to you. You must subscribe it. You will be benefited. Sometime we go for the free materials and waste our energies. We should take some material which is worth and concentrate on study from that material. Then I have provided you banking awareness videos. 193 videos are there. Develop a habit of watching 5 to 10 videos daily. It will help you to score high marks. So if you follow this methodology, you are bound to be achiever, and ultimately you will succeed in cracking the SBI PO. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे। SBI PO की हम तैयारी कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, दिन प्रतिदिन हमारे अंदर इम्प्रूवमेंट आती जा रही है। जिन लोगों ने मेरा बताया हुआ मॉक टेस्ट लिया और मेरे बताए हुए रास्ते से पढ़ाई कर रहे हैं, उनमें लगातार निरंतर
दिन प्रतिदिन इम्प्रूवमेंट आती जा रही है। काफ़ी लोग अपनी परफॉर्मेंस मेरे साथ शेयर भी कर रहे हैं, व्हाट्सएप मैसेज भी भेज रहे हैं, वो स्क्रीनशॉट भी भेज रहे हैं। ये स्क्रीनशॉट हम आपको इस चैनल के कम्युनिटी में भी शेयर कर रहे हैं ताकि आपको इंकरेजमेंट मिले, आप भी उस रास्ते पे चलें, आप भी फ़ायदा उठाएं। जितनी जल्दी हम मॉक टेस्ट सब्सक्राइब करेंगे, इसको यूज़ करेंगे, इससे फ़ायदा उठाएंगे, हमें फ़ायदा होगा। अगर अभी तक आपने ये मॉक टेस्ट सब्सक्राइब नहीं किया है, आज इस लिंक को यूज़ कीजिए, इस लिंक को क्लिक करके आप रजिस्टर कीजिए और सब्सक्राइब करिए। इसमें बहुत फ़ायदा होना है। 599 में आप एनुअल प्लान ले रहे हैं, 12 महीने के लिए 599 आप स्पेंड कर रहे हैं। जितने भी एग्ज़ाम्स 12 महीने के दौरान आएंगे, बैंकिंग के, इंश्योरेंस के, उनके मॉक टेस्ट आपको अवेलेबल होंगे। 50 रुपये महीने की कॉस्ट आपको पड़ रही है और बगैर एक अच्छा गुड क्वालिटी मॉक टेस्ट आपको मिल रहा है। आज आपने 10वां मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करना है। इस मॉक टेस्ट को अटैम्प्ट करने के बाद आपने इसका सोल्यूशन देखना है, फिर इसकी एनालिसिस देखनी है। अब एनालिसिस देखने में आपको पता लगेगा कि मेरी कमियां क्या है। जो भी आपकी कमियां हैं उनको आप डायरी में नोट करिए, कॉपी में नोट करिए और ये आपका सिलेबस बन जाता है। आने वाले दिनों के अंदर आपको क्या पढ़ाई करनी है, आने वाले दिनों का मतलब है अगले 3 दिनों में और आज। तो यदि हम उस क्षेत्र में फोकस करते हैं जो मेरा कमज़ोर है और उसमें पढ़ाई करते हैं और उस कमजोरी को दूर कर लेते हैं, तो नेचुरली मेरे रियल एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आएंगे। अब ये कमजोरी कहाँ से दूर होगी? ये कमजोरी दूर होगी अगर मैं एलिमेंट्री बुक पढ़ता हूँ। अब कई लोगों को दिमाग में आता है कि सर एलिमेंट्री बुक कहाँ से मिलेगी? बहुत आसान है, टॉपिक का नाम डालना है प्लस एनसीईआरटी बुक डालना है, गूगल सर्च में चले जाइए। यू विल लैंड अप ऑन ए PDF, जहाँ पर ये किताब है उसको आप पढ़िए, कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। क्वांट के लिए आप ऐसे करेंगे। इंग्लिश के लिए अच्छी ग्रामर बुक ले लीजिए, रन एंड मार्टिन मैंने आपको सजेस्ट की है, उसको पढ़ लीजिए। रीजनिंग में कोई टॉपिक आपका नहीं हो रहा है, उस टॉपिक को आप डालिए, गुड बुक लिखिए, गूगल में सर्च करिए, वो आपको उस टॉपिक पे एक अच्छी किताब के PDF पे ले जाएगा। फिर वहाँ से आप उस कंसेप्ट को समझिए, उस टॉपिक को समझिए, उस टॉपिक को समझकर आप फिर अटेम्प्ट करेंगे तो आपके नंबर अच्छे आएंगे, आप ऐसे प्रश्नों को कर पाएंगे। तो हमारा एफर्ट क्या होना चाहिए? आज हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम है, इसको हमें कहाँ इस्तेमाल करना चाहिए? अपनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी को अचीव करने में। जितना ज़्यादा हमारी कंसेप्चुअल क्लैरिटी होती चली जाएगी, उतना हम सक्सेस के नज़दीक पहुंचते जाएंगे। काफ़ी लोग एग्ज़ाम पास नहीं कर पाते क्योंकि उनको कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, मगर वो गलत फहमी में रहते हैं कि हमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी है। उनसे पूछो भाई क्यों नहीं हुआ? सर मेरी तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी ठीक है मगर स्पीड नहीं बढ़ रही। मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता हूँ। अगर आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी है तो स्पीड ऑटोमेटिक है। वही व्यक्ति स्लो होता है जिसको कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है। तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी अचीव करना निहायत ज़रूरी है अगर मुझे कामयाब होना है। जितना मैं एलिमेंट्री टेक्स्ट बुक पढ़ूंगा, मेरी कंसेप्चुअल क्लैरिटी होती चली जाएगी। ये मुझे बिल्कुल मान लेना है और जितनी जल्दी हम इसको मान लेंगे उतनी जल्दी हम कामयाब हो जाएंगे। फिर 1 घंटा आप लगाइए करंट अफेयर्स पे। करंट अफेयर्स के लिए मैंने बहुत अच्छा PDF का लिंक आपको दिया है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्री मटेरियल के चक्कर में हम रहते हैं, करंट अफेयर के डुप्लीकेट मटेरियल पढ़ते रहते हैं, टाइम वेस्ट होता है। अच्छा मटेरियल लीजिए, 350 में 1 ईयर का आपको PDF मिल रहा है, 30 रुपये महीना भी कॉस्ट नहीं कर रहा, 1 रुपये पर डे। अच्छा मटेरियल ले लीजिए, मैंने बहुत चुन के आपको ये रिकमेंड किया है, बहुत फ़ायदा होगा आपको। एक ही सोर्स से आपके अधिकांश क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, जगह जगह भटकना नहीं पड़ेगा। फिर बैंकिंग के लिए मैंने आपको 193 वीडियोस की प्लेलिस्ट दे दी है, 5 से 10 वीडियो रोज़ देख लीजिए और फिर आप देखिए आपकी कितनी बेहतरीन नॉलेज हो जाती है।
कितनी आसानी से आप बैंकिंग के क्वेश्चन हैंडल कर लेते हैं और जो भी न्यूज़ आ रही है उसको कैसे समझ लेते हैं। इस तरीके को अपनाइए, सक्सेस आपको मिलेगी। गॉड ब्लेस यू ऑल।